कोई सो बिफोर द ब्रेक कोई काइंडली सेटल डाउन चलें भाई, लास्ट में आगे आ जाएं थोड़ा सब लोग। ओके जी, सो बिफोर द ब्रेक वी वर डिस्कसिंग पॉइंटर्स, अ वेरिएबल व्हिच सेव्स एड्रेस एज अ वैल्यू, a special type of variable is called a pointer. It's called a pointer. It cannot save a regular values, integer, floats, characters as a value. It can only save addresses as a value. So we have a variable a, we have created its pointer aptr, just like the same sort of variable. A equal to 7, we have initialized it. We have created pointer to a, isn't it? Now aptr is a pointer to an integer which is a with the content 7. C out ampersand a क्या आएगा जी? Address of a, but where a is actually stored in hexadecimal notation, that address will be displayed. C out aptr, aren't they equal? If you say they are equal, then how come 7? Address of a, aptr पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू होगी? तो 7 किस तरह आ गया? पॉइंटर के अंदर तो 7 हो ही नहीं सकता, पॉइंटर के अंदर तो होता ही एड्रेस है। सी आउट ए, सी आउट स्टैटिक aptr, कैन यू कोरिलेट इट? एवरीथिंग इज देयर। नाउ सी आउट एम्परसेंड स्टैटिक aptr, or we can write C out static ampersand aptr, and we have said that both are inverse of each other, ampersand and static, they both nullify each other effect in both the cases, so only this will be left, address. इसकी आउटपुट देख लेते हैं। C out ampersand a, address of that location where a is stored. C out aptr, the same address of memory. C out a 7, C out static, the content of this address. Go to that address, and what is the content using the star operator? The third usage of static, indirection 7. आज आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि why indirection, हम indirectly क्यों सर्च करना चाह रहे हैं वैल्यू जब हम फंक्शन में ये पासिंग करेंगे। बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, वी राइट इट दिस वे और दैट वे, इन आइदर ऑफ द केसेस aptr is left, and what is stored in aptr? Address of a, the same address in both the cases. अभी तक हमने ये डिस्कशन की है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज ऑल पॉइंटर्स डिस्कशन। टू सेव एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, to manipulate the variable without its name using indirection, not to write it, read it only, but to write it as well. How many ways of passing variable we have discussed yet? बताएं जी, फंक्शन को कौन कौन से बताएं जी। मुनीब, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। आज हम थर्ड वे देखना चाह रहे हैं, पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर आर्गुमेंट। पास बाय वैल्यू, दिस आर द 3 वेज। पास बाय वैल्यू वी नो, कॉपी बन जाती है। पास बाय रेफरेंस एक और नाम आ जाता है, वो एड्रेस ही होता है एक्चुअली। पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर, सिमुलेट, ये को डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं, हमें बिल्कुल ये चीज समझ आ जाएगी। जस्ट टू रिफ्रेश अवर नॉलेज, पहले पास बाय वैल्यू देख लें। क्यूब बाय वैल्यू, इंटीजर इनपुट होगा और इंटीजर ही रिटर्न होगा। पास बाय वैल्यू में यहां वॉइड नहीं आ सकता, इजंट इट? क्योंकि वैल्यू रिटर्न होगी। पास बाय वैल्यू डायरेक्ट मेमोरी पे तो मैनिपुलेशन नहीं करता, इजंट इट? एक्स ने कंटेंट वाई को कॉपी करके दिया, वाई ने उसमें चेंजेस की, वो जो वाई की वैल्यू है वो वापस जाती है। तो दैट्स व्हाई पास बाय वैल्यू में यहां वॉइड नहीं होता, इंटीजर होता है या डबल होता है। This also indicates its pass by value, even if the function name is something else. It will take an argument and integer, it will return an integer. If it will take 2, it will cube of it and return the same result as an integer.
It will take 5, it will result 125, an integer. Number is 5. The original value of the number. जी तो हमें ये चीज देखनी है कि int xptr is a pointer equals to %x. ये हमने जब किया so this all can be done. It is still written over there. We come to this example. We have a variable number with the value 5. क्यूब का वैल्यू क्या यहां से जा रही है? कॉपी होगी, ऑफ कोर्स कॉपी होगी. लाइन नंबर 17 से आपका कंट्रोल जाएगा क्यूब बाय वैल्यू की डेफिनेशन पर. क्यूब बाय वैल्यू में रिसीव कौन कर रहा है? n is another variable which will receive the same value. 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्या है? रिटर्न हो गया 125 एंड 5 ही है, नंबर भी 5 है, वापस रिटर्न हो गया. वी हैव गॉट 125. किसको साइन कर रहे हैं? अब नंबर चाहिए. सी आउट नंबर 125. So this is pass by value. इसकी रिस्ट्रिक्शन यह है एक से ज्यादा रिटर्न नहीं लग सकता, which is a big restriction actually. आपने एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे काम करना होता है. अगर उन सबको आपने अपडेट करना है तो पास बाय वैल्यू इज नथिंग. इट विल कन्फाइन यू टू ओनली सेंड बैक अ सिंगल वैल्यू. ठीक है. नाउ द सेम एग्जांपल विद पास बाय रेफरेंस विद पॉइंटर आर्गुमेंट. लाइन नंबर 9 में क्लियरली पता लग रहा है कि हमने सिर्फ इंट नहीं लिखा पास बाय वैल्यू, हमने इंट के साथ एम्परसाइंड नहीं किया पास बाय रेफरेंस. इंट के साथ स्टेरिक आ गया पॉइंटर, कि हम पॉइंटर की वो मैनिपुलेशन करेंगे. लेट्स सी वो क्या. प्रोटोटाइप में वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट आई विल नॉट बी रिटर्निंग एनीथिंग. I will be directly manipulating the memory using the pointer and I will pass a pointer argument. Number 5. Same example. Number 5. कोई copy memory initial value वही हम रखते हैं and that is 5. The original value of the number is 5. Cube by reference. Ampersand number. What does this mean? एम्परसेंड किस यहां पर स्टोर हुआ है उसका एम्परसेंड नंबर. एड्रेस ऑफ दिस नंबर. लाइन फ्रॉम लाइन नंबर 18 द कंट्रोल गोज टू लाइन नंबर 27 विच स्टेट्स रिसीव किसने किया? इसका एड्रेस किसने रिसीव किया? nptr. एक वेरिएबल है जिसने एड्रेस रिसीव किया है. क्या लिखा हुआ है यहां? इंटीजर स्टैटिक nptr, isn't it? इसमें किसने क्या रिसीव किया? एड्रेस. तो आर द इक्विवेलेंट. सेम प्रोसीजर हुई. एड्रेस पास किया, इसने रिसीव किया, तो आप कहते हैं वो पॉइंटर बन गया. एड्रेस पास किया, इसने रिसीव किया, कैन आई स्टेट? कैन यू ड्रॉ द एरो? नाउ nptr is a pointer to number. Now how to assess this value? क्या लिखूंगे मेरे पास 5 आ जाए? क्या वैल्यू आएगी? क्या वैल्यू आएगी? फिर वही लिखें 5 5 5 स्टैटिक nptr. क्या वैल्यू आएगी? क्यूब करना है, मल्टीप्लाई कर दें. 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 125 इक्वल टू स्टैटिक nptr. स्टैटिक nptr इक्वल्स टू 125. ये कहां जाके चेंज होता है? तो लाइक वाइज ये कहां जाके चेंज होगा?
दोनों को कोरिलेट कर लो। नंबर की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। यूजिंग पॉइंटर एड्रेस सेंड किया, पॉइंटर ने रिसीव किया, वी कैन जस्ट कोरिलेट दिस टू वेरी इजीली। टेक्स्ट पीटीआर ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्शन। पॉइंटर पास किया, वही बात, इसने रिसीव किया, जब उसका पॉइंटर बन गया इन डायरेक्शन की, सेम प्रोसीजर। मल्टीप्लाई किया 5 क्रॉस 5 बाइनरी कॉन्टेक्स्ट में, स्टेरिक इज अ मल्टीप्लायर, ओवर हियर इट इज इनडायरेक्टली असेसिंग द वैल्यू 125 स्टेरिक टाइम पीटीआर इक्वल टू 125। व्हाट दिस मीन कि जो एड्रेस स्टोर हुआ है वहां जाए 20 कर दे, आपने कहा 120 हो गए, वहां पर 5 की जगह 125। वी हैव डन नथिंग मोर। कंट्रोल वापस जाएं, सी आउट करें नंबर, क्या वैल्यू आएगी? 1। ये है जी यूजिंग पॉइंटर्स। अब इसका एक्चुअल यूजेज क्या है? आप स्टैटिक इंट स्टैटिक कॉमा इंट स्टैटिक कॉमा इंट स्टैटिक 3 वेरिएबल पास करें, तीनों को पॉइंटर बनाएं रिसीविंग एंड पे, और पॉइंटर के थ्रू तीनों वेरिएबल्स को अपडेट कर लें। कोई वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत पड़ेगी? ये सो pass by reference using pointers of course also allows us to return more than one value from a function. This is how values are returned. क्विज में भी जो आपको दिया गया था वो सिंपल पास बाय वैल्यू था, उसको आप पास बाय रेफरेंस से भी कर सकते हैं। मींस अब आप रेफरेंस लगा लें या पॉइंटर कर लें। पॉइंटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, क्योंकि इसमें आप एड्रेसिंग की मैनिपुलेशन करते हैं। अब इस कंप्लीट में आपने नंबर की वैल्यू चेंज कर दी यूजिंग अ पॉइंटर, इसलिए हम पॉइंटर पढ़ रहे हैं, isn't it? कि आपने यहां से उसका एड्रेस सेंड किया है पॉइंटर को, उस एड्रेस में जाकर उसको मैनिपुलेट कर दिया। अनदर बिग मोटिवेशन टू स्टडी पॉइंटर्स। एक तो वो स्टार्ट में थी ना कि एरे को आपने बर्स्ट कर दिया, डाटा डिफरेंट स्टोर्ड है, अब फ्रॉम हाउ टू लीव फ्रॉम 0 to 1, 1 to 2, so on and so forth। और आप विद इन फंक्शंस भी देख सकते हैं कि हाउ इट इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड, यूटिलाइज्ड। तो ये आप सिंपली देख सकते हैं, द ओरिजिनल वैल्यू इज 5 एंड द न्यू वैल्यू इज 125 एंड वी हैव अ वॉइड एड रिटर्न टाइप। उसको जाके जरूर इंप्लीमेंट करें अगेन, देन इट विल क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स, मॉडिफाई। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, रेस्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स अपलोडेड, उनको आप जरूर कोशिश करें इंप्लीमेंट करने की। मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आर कमिंग रिलेटेड टू पॉइंटर्स एंड स्ट्रक्चर्स। ओरिजिनल वैल्यू, मॉडिफाई एंड असेस इंटीजर। प्रोग्रामिंग में वही बात, आप जितना टाइम देंगे एडिटर पे बैठेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई होते हैं। और प्रोग्रामिंग के बगैर आपको पता है कि इफ द इवन द इंडस्ट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स 4.0, तो उसमें फिर प्रोग्रामिंग हैविली इन्वॉल्व है, क्लाउड कंप्यूटिंग में, आईओटीज़ में, और जितने भी बज़वर्ड्स हैं आजकल आप सुन रहे होंगे, उसमें फिर ये चीज़ें कि उसका, इसीलिए आपने देखा कि प्रोग्रामिंग के कोर्स आपके करिकुलम में कम या ख़त्म नहीं हो रहे, बल्कि और इंक्रीज होगी। और मे भी फ्यूचर में आप डाटा स्ट्रक्चर वो भी पढ़ना पड़ रहे हो, वो फिर कोर कंप्यूटिंग बन जाएगी। लेकिन अप टिल दिस पॉइंट एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इट इज़ बीइंग फेल्ट कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को जो बेसिक प्रोग्रामिंग है वो आनी चाहिए, ठीक है, इन C++ और इन पाइथन। नेक्स्ट बस जावा के लिए इधर आते हैं। अच्छा, इतना अच्छा तो आपने समझ लिया, अब डिस्कशन आप खुद बताते रहेंगे, आपको और समझ आएंगी चीजें। अब मैं देखता हूँ आपको कितना समझ आया पॉइंटर विदाउट एंटरटेनिंग यू। If we print our values, we will get the address of value pointers. अच्छा ये बताया जी, integer value to 42 C out ampersand integer again address static, ये आप पढ़ें, समझ आ रहा? स्टैटिक के 3 यूज हैं।
एक मल्टीप्लाई आपको तमाम यूजेज बोर्ड पे हैं। मल्टीप्लाई फंक्शन डिक्लेयर पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन इन डायरेक्शन, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ऑल्दो ही इज रिटन मैनी इट माइट गेट कंफ्यूज, सो इट्स नॉट द केस ओवर हियर, इट इज वेरी मच क्लियर टू अस। आगे देख लेंगे। सी आउट वीयर स्टैटिक वैल्यू चेंज होगी है। सी आउट वीयर अपडेटेड वैल्यू डिस्प्ले, सी आउट एंड स्टैटिक। सिर्फ इंटीजर के पॉइंटर नहीं है, करैक्टर के भी हैं, सेम प्रोसेस। सी एच 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 का पॉइंटर सी एच पी टी आर, सी आउट सी एच क्या आएगा, एड्रेस एड्रेस। स्टैटिक ये क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कौन सा है, आपने वैल्यू चेंज कर लिया इनडायरेक्टली, तो अब लेटेस्ट वैल्यूज क्या आएगी, एक्सक्लेमेशन मार्क, सी एच एक्सक्लेमेशन। देखें जी, फ्लोट में फ्लोट पॉइंटर, अगेन वही चीज़ें, वेरिएबल में डाटा टाइप्स चेंज किए हैं ताकि हमें पता लग सके हर डाटा टाइप का पॉइंटर क्रिएट हो सकता है। 1.4 चेंज होगी वैल्यू, फॉलो। आंसर बताएं जी इस लास्ट लाइन का। इस लाइन का क्या आंसर है, और इसका हल एनी अदर ऑप्शन। देखिए ये x की वैल्यू 4 है, स्टैटिक x से क्या वैल्यू सेस हो रही है, 4 + 10 किधर असाइन हो रही है, ये x किसको पॉइंट कर रहा है, x को, तो x क्या हो गया 14। सेम गोज फॉर y, 7 + 10 1470। मेमोरी स्टेट, अगर ये 4 है 7 है 950 पे स्टोर है px 952, जब ये अपडेट होंगे तो ये 1470 में पॉइंटर उधर ही है, उसी को पॉइंट कर रहे हैं। मींस px में 950 स्टोर है, 950 क्या है, एड्रेस ऑफ x। y में 952 स्टोर है, क्या है, एड्रेस ऑफ y। ट्रू फॉल्स जरा बताएं, ये मिक्स हैं पॉइंटर्स और करैक्टर्स के। ptr2 इक्वल्स टू %c, ट्रू और फॉल्स। ptr2 क्या c को कर सकता है पॉइंट, ptr2 इज अ पॉइंटर, करैक्टर इसका करैक्टर। ओके, ptr1 क्या है, फ्रेड को कर सकते हैं, कर सकते हैं, बोथ आर इंटीजर्स। लास्ट वन, ठीक है, ये बताएं ptr2 और fred, ptr2 is a character fred, so we have a issue over here, it cannot। %# ये वो सिंटेक्स हैं जो कि लोग खुद बनाते हैं एग्जाम्स में, तो इस तरह के सिंटेक्स मत बनाएं। so this is not allowed कि %#, %25 ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, % एक्सप्रेशन, सो दिस इज एवरीथिंग इज नो, ठीक है, तो इसको अवॉइड करें, सिंटेक्स को फॉलो करें, ठीक है। ये क्या हो रहा है जी, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस बताएं जरा। c इक्वल्स टू स्टैटिक p1, इसका क्या मतलब है, c इक्वल्स टू a, मतलब वही आपने ठीक बोला, c इक्वल्स टू a एक्चुअली। आगे ये क्या लिखा हुआ एक्चुअली, isn't it a equals to a cross a, ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन सॉर्ट ऑफ, तो आप ठीक कह रहे हैं, isn't it a++, और ये c इक्वल्स टू a जी।
हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बस पढ़ते जाएं। इसका आंसर बताएं जी। आई थिंक आपका आज का लेक्चर सक्सेसफुल है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके आंसर के बाद कुछ लोग अटेंडेंस के लिए बैठे हैं। चलिए जी बताएं जी सी आओ। दूसरी क्लास में जीसी ने आंसर बताया था, बिल्कुल ठीक इस क्वेश्चन में। आई वुड लाइक कि जीसी में से कोई आंसर बताएंगे। सारे मैंने बताया था, जीसी सारे में आप जानते हैं, और बाकी स्टूडेंट्स ने गलत बताया था, उसने ठीक बता दिया। 3 4 कोई बता सकता है जी जीसीज में? 3 4 3 and kind raise hands. 3 4 3 3 4 4 ओके। बाकी कौन है? 3 4 2 all of above नहीं, one of these है। 3 4 4 देखिए एंड में पॉइंटर बी का पी बी को पॉइंट कर रहा है, तो अगर बी 4 है तो ये भी 4 आएगा। 3 4 3 नहीं, ठीक है 3 4 4। बस ये लास्ट स्लाइड चल रही है जी। अगर आपने पॉइंटर बना लिया है, ये लास्ट है। अगर आपने बना लिया पॉइंटर वेरिएबल का, तो एरे का भी बना लें। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, अभी आपको पता लग जाएगा। एरे इक्वल्स टू 3 1 4 5 ये आपने इनिशियलाइज किया। स्टैटिक पीटीआर इक्वल्स टू एरे। इस लाइन में क्या मिस्टेक है? इसमें वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 3 का एड्रेस। अगर उसमें ऑलरेडी एड्रेस स्टोर्ड है तो एम्परसेंड की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ एरे, तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये ठीक है। अगर ये वेरिएबल होता तो आप लिखते हैं एम्परसेंड एक्स। एरे नेम इज इटसेल्फ अ पॉइंटर, इट सेव एड्रेस वेयर 3 इज स्टोर्ड, तो इक्वल टू दिस इज फाइन। तो अगर आप करेंगे एरे ऑफ 0 क्या डिस्प्ले होगा? तो अगर आप करेंगे एरे पीटीआर ऑफ 0 क्योंकि बोथ आर पॉइंटिंग टू दिस, आप कहते हैं कि जो एरे को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर जो आपने भी क्रिएट किया इसको प्लस प्लस कर दे। अब ये 3 की जगह किसको पॉइंट कर रहा है? तो अगर मैं अब लिखूंगा एरे पीटीआर ऑफ 1 0 तो क्या आंसर आएगा? अब 0 तो ये हो गया। सेम चीज अगर मैं चाहूंगा कि एरे को मैं प्लस प्लस करूं, वहां एरर आ गया। एरे 3 से आगे मूव नहीं कर सकता, आपका क्रिएटेड पॉइंटर आगे मूव कर सकते। एक और चीज पता लगी, अब एरे आर पॉइंटर्स बट दे आर फिक्स्ड पॉइंटर्स, क्योंकि उनके पास एरे की स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस है, वो आगे मूव नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस बट यू कैन क्रिएट अ पॉइंटर एंड कैन डू दिस। So arrays are pointers but fixed pointers. Arrays are fixed pointers. तो इसके साथ हम फिर आज के ये नशिस्त को बर्खास्त करते हैं।